Okay. Introduction to web. Okay. You know what is web? कि आजकल जो भी चल रहा है नेट पे ऑनलाइन में ऑल द एंटायर थिंग इज वेब. Okay, so technology at its peak has enhanced communication to a level undream of. आजकल टेक्नोलॉजी इसके बगैर सोच ही नहीं सकते आप लोग. ओके, इतना हो गया है आजकल. Today information can be conveyed across the vast distance within the twinkling of an eyes. एक सेकंड पे इंफॉर्मेशन चला जाता है. Let us perceive how this is possible with the goal of sharing information throughout the world. Okay, they started this web. They started this web with a goal of sharing information throughout the world. Okay, ऐसा सोच के उन्होंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था. किसने स्टार्ट किया? सेंटर यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर ने, which is Center for High Energy Physics in Geneva, which is located at Switzerland. This technology is called World Wide Web. Web बोलते हैं हम लोग उसको. Okay, the main aim of this technology is to share the information across the world. That is the main aim. With that aim, they started this technology that is called World Wide Web. Okay, World Wide Web is a vast enormous blob of text, images, audio, video scatter across the network and computer net worldwide. Okay, देखो अभी भी एक दिन एडमिट होते जा रहे हैं लोग. Okay, it shortly referred as web, or we can call it as W3. Okay, इसको वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं. Technically speaking, it's a software, okay, which aid user to explore the internet facility. World Wide Web is a part of internet comprising of web pages and website. Okay, first of all, you should know what is the difference between website and web page. Website, web page. Web page is information, one page information. Okay, website means is a collection of web pages which we can upload on net. Okay, normal पेज आपने बनाया, that is called a page. अगर आपको आप ऐसा पेज बना रहे हैं जिसको आप अपलोड कर सकते हैं, that is called web page. It's a collection of web pages known as website. Okay, collection of web pages is known as website. Okay, World Wide Web is helpful in different ways to different user. हर एक यूजर को अलग अलग यूज होता है, either in advertising, information about current invention or entertainment. It is both humorous and informative. Okay, आपको बहुत तरह का information इसमें मिलता है. Institution, government or agencies, business organization across the web to barter information with million of users by creating their own web pages. एक दूसरे को information बांटते हैं सब. Okay, that is called barter information. आप देते हैं, information लेते हैं. Okay, that is World Wide Web. Okay, let's go and see what is web page. Web page is a collection of file known as web page. This web page can contain hyperlink to a link other web pages. Hyperlink पता है आपको, जैसे आप कर्सर लेके जाते हैं, क्लिक करते हैं, आपको एक हैंड आता है, क्लिक करने से एक दूसरा वेबसाइट ओपन करता है. That is called hyperlink. And hyperlink can be any text or an image. When click would display another web page. There may be one or more pages in the home page, which is the initial web page present in a website. Okay, who are webmasters? Exam में क्वेश्चन बहुत आता है, what is web page 2 मार्क के लिए. Webmasters बोल के आता है. The title webmaster means a person who work on the content end of the web. जो आदमी वेब पे काम करता है, उसके कंटेंट पे काम करता है, that person is called webmaster. When you examine that webmaster actually do, there are different definition of webmasters. Okay, इसके अलग अलग categories है. Actually broadly देखेंगे आप, it is divided into 4 categories. Okay, the first category is content provides work on data itself. A person who create website, who edit HTML document, who incorporate images, who create forms, who maintain
इंटीग्रिटी ऑफ द लिंक, कि वेदर आपका लिंक बराबर चलता है, बराबर ओपन होता है, बराबर बंद हो रहा है, कोई भी ब्राउजर पे ओपन होता है, वो सब चेक करता है, जो कोडिंग करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड वेब मास्टर. Okay, the second category is designer, a person who create the images and also define the look of the site. आपका वेबसाइट का लुक कैसे होना चाहिए, कौन सी इमेज ऐड करना चाहिए, बैकग्राउंड कलर कैसे होना चाहिए, आपका टेक्स्ट कैसे दिखना चाहिए. A designer do all this thing. So that person is also called a designer. डिजाइनर में अलग अलग तरह के डिजाइनर होते हैं. द पर्सन हु डिजाइन न्यूज़पेपर्स का टेम्पलेट पोस्टर, दैट पर्सन इज कॉल्ड वीडीपी डिजाइनर. ओके, हर एक का अलग अलग डिजाइनर है. अगर यहाँ पे कोई डिजाइन करता है तो दैट इज कॉल्ड अ वेब मास्टर डिजाइनर. वेब डिजाइनर भी बोलते हैं इसको. ओके, प्रोग्रामर, अ पर्सन हु राइट कोड्स फॉर वेबसाइट. जैसे वेबसाइट में कौन सी कोडिंग आते हैं, द पर्सन शुड बी फेमिलियर विद लेआउट डिजाइन. जैसे HTML आना चाहिए उसको स्क्रिप्ट्स आना चाहिए. ओके, CGI आना चाहिए उसको, गेटवे कैसे जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, VB स्क्रिप्ट आना चाहिए. कोई भी वेबसाइट रिलेटेड प्रोग्रामिंग है जो डिजाइन करेगा, जिससे वेबसाइट बनेगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड, द प्रोग्रामर इज कॉल्ड वेब मास्टर. जो प्रोग्राम लिखता है, ओके, उसको वेब मास्टर बोलते हैं. ओके, एडमिनिस्ट्रेटर, a person who makes sure that the server is running properly and efficiently at all time. They might also be responsible for establishing new content development area, writing script, maintaining the security of sensitive document of the site in general. This type of person is called administrator. वो पर्सन देखता है कि सर्वर कैसे चल रहा है, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कैसे सॉल्व करने का. ओके, नए नए कंटेंट को अपलोड करेगा, नया स्क्रिप्ट भी लिखेगा वो, और सिक्योरिटी देखेगा कि वायरस अटैक होगा तो कैसे हैंडल करने का, या कोई कुछ अटैक होगा तो कैसे इसको हैंडल करने का. ओके, ये सब जो चेक करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर. जैसे सर्वर का भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इसी तरह वेब में भी सब में जॉब है. हमारे ज्यादातर BCA के बच्चे देखो, ऑल दे आर वर्किंग ऑन दिस टाइप ऑफ कैटेगरी. ओके, कोई वेबसाइट पे काम करता है, कोई डिजाइन बनाता है, कोई प्रोग्राम लिखता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर पे काम करता है. बहुजन का मैं प्रोफाइल देखता हूँ एंड गो फॉर जॉब. हमारे जो भी BCA से बच्चे ज्यादातर यही जॉब में है. ओके, दिस इज द न्यू एरिया, दिस इज द न्यू एवेन्यू. ओके, इसमें बहुत स्कोप है. ओके, तो दिस आर दी 4 ब्रॉड एरिया ऑफ अ वेब मास्टर्स. ओके, हाउ इंटरनेट वर्क, ये आपको बताया मैंने पहले ही. लेट फोकस ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, वर्ल्ड वाइड वेब आजकल उसके बगैर सोच ही नहीं सकते हम लोग. ओके, इट गिव यूजर ग्राफिकल वे देता है, इजी टू नेविगेट करता है. ये यू कैन लुक एनी डॉक्यूमेंट इन इंटरनेट. आजकल ऐसे हुआ है कि बिना नेट के, बिना वेबसाइट के लाइफ ही नहीं. जस्ट यूजर को क्लिक करना पड़ेगा, यू कैन ओपन एनी वर्ड, एनी डॉक्यूमेंट, कुछ भी. छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मीनिंग देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, ऑटोमेटिकली कर लेते हैं. ओके, दैट इज वर्ल्ड वाइड. Let us see what are the advantages of World Wide Web. Hypertext. We can link document each other by hyperlink. आपको एक small hand आता है, वो facility है, आपको click करो, कोई भी document open होता है. And the content is simple to create and make available to use. अब आराम से कोई भी ऐसा कुछ नहीं. देखो, प्रोग्रामिंग में लॉजिक चाहिए, बहुत जन को होता है, नहीं होता है. कंटेंट तो कोई भी डेवलप कर सकता है. तो you can easily create a content and it make available to everybody to use. You can add multimedia content. Okay, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं आप, मूवीज ऐड कर सकते हैं आप, साउंड ऐड कर सकते हैं to make it more interesting. And it's had open internet connection with appropriate fee to purchase a license. बाकी सॉफ्टवेयर में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा. यहाँ पे कुछ नहीं है. इट हैज ओपन स्टैंडर्ड. ओके, सब कुछ आराम से फ्री में कर सकते हैं आप. इजी टू यूज, जस्ट क्लिक करो, एक्सेस द इंफॉर्मेशन यू वांट.
डाउनलोडिंग फैसिलिटी, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए, फाइल, टेक्स्ट, इमेजेस, मूवीज, म्यूजिक, ये सब कर सकते हैं आप लोग। चीप इंफॉर्मेशन कैन बी पब्लिश्ड एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्ड बाय ट्रेडिशनल मेथड। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन डालना है, नॉर्मली आप ले लो कि मुझे रोड पे एक बड़ा होर्डिंग लगाना है, होर्डिंग का कॉस्ट जाके पूछो, पूरे महीने का 4-5 लाख रुपया रहेगा। और नॉर्मल लोग देखेंगे, ये एरिया के जहाँ सर बॉम्बे या महाराष्ट्र के लोग देखेंगे, कोई बाहर से आएगा, एक जगह एक एक जन दिखेगा। ओके, 5 लाख महीने का, कंपनी 10 लाख खर्चा करती है, डिपेंड्स ऑन द एरिया, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, और वो इंफॉर्मेशन एक ही इंफॉर्मेशन रहेगा उधर। ओके, नेट पे पूरा वर्ल्ड देखेगा आपका इंफॉर्मेशन, और हर सेकंड पे आप चेंज कर सकते हैं उसको, कलर चेंज कर सकते हैं, कंटेंट चेंज कर सकते हैं आप, और एकदम मिनिमम कॉस्ट में, 5 लाख नहीं लगेगा, 2-3 हजार में हो जाएगा। तो कितना चीप हो गया है, एंड यू आर रीचिंग टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। किसी को भी कहीं पे भी आप इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। ओके, तो इंफॉर्मेशन किसी को भी मिल जाएगा अगर आप डालेंगे इसमें तो। ओके, अपडेशन इंफॉर्मेशन आप कभी भी अपडेट करो, नया नया डालो, हर घंटे में चेंज करो, कुछ भी करो, आप कभी भी कर सकते हैं। एक बार होर्डिंग डाल दिया, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। ओके, नया होर्डिंग लगाने के लिए भी उसको मैन पावर लगेगा, कोई बनाएगा, कंटेंट डालेगा, चेंज करेगा, ऊपर चढ़ेगा, डालेगा, लॉट ऑफ थिंग। ओके, इसमें बहुत आसान है, जस्ट बनाया, अपलोड कर दिया। ओके, तो दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। आई वांट यू टू आस्क क्वेश्चंस, हाँ प्लीज गर्ल्स, किसी को लगता है तो यू कैन स्टॉप मी एंड यू कैन आस्क, अनम्यूट करो और बात करो। किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ, क्या बीच में ब्रेक हो जा रही है? ब्रेक हो रहा है। हाँ सर, आपकी सर बीच में आप एकदम से अटक जा रहे हो, पॉज हो जा रहा है। नहीं नहीं दे रहा आप अभी क्या आप बोल रहे हो। अभी हो रहा है? नहीं अभी सर। क्लियर है सर, बीच बीच में ऐसे अटक रही है, मतलब एक्सप्लेन अच्छा। करते हाँ टाइम। सर, मैं ईयरफोन चेंज करूं? जस्ट अ मिनट, हाँ, एक मिनट। हाँ चलेगा। सर को रिकॉर्डिंग करने बोलो ना फिर तो। Now girls, can you able to hear me? Yes sir. Okay, यस सर। कुछ लगेगा तो बताना। Yes, sir, but your voice is too low. too low है? यस It's okay now? Okay now? Now it's okay? No, Yes. sir. The song volume. बहुत कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। अभी देखो, अभी देखो। हाँ सर, Now अभी it's ठीक okay? है, अभी ठीक है। Oh, हाँ good, ठीक है okay. सर। Guys, कुछ भी होगा बताना मुझे, तभी तो मालूम पड़ेगा। सर सर हाँ बोलो। सेशन रिकॉर्ड कर सर दो आप please. सेशन रिकॉर्ड कर सकते हो क्या? अभी तो आधा हो गया है ना, चलेगा। अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से जरूर करूंगा, नेक्स्ट टाइम से जरूर करूंगा। हाँ ठीक है सर। Okay, girls, these are the advantages। इसमें कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आता तो यू कैन आस्क मी। ये सब तो लोगों को शेयर करूंगा मैं, ये सब मैं आपको भेजूंगा। ओके, आई जस्ट गो थ्रू एक बार वापस थोड़ा सा रिपीट। वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, आजकल वेब के बगैर सोच ही नहीं सकता है कोई भी। ओके, वेब कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोस and videos. Okay, different people use, many people use for advertisement, somebody use for information exchange, or somebody use for entertainment। अलग अलग तरह के अलग अलग लोग यूज करते हैं। ओके, वेब पेज क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन वन पेज। वेबसाइट का मतलब इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वेब मास्टर भी होता है। नाउ इज क्लियर अभी गर्ल्स? Yes sir. यस सर। Webmaster maybe there are different categories. There are 4 category I told you: the person who work on the content end, the person who create, who edit HTML pages,
वो इनकॉर्पोरेटेड इमेजेस फॉर्म बनाता है, मेंटेन करता है इंटीग्रिटी ऑफ द लिंक को, उसको वेब मास्टर बोल सकते हैं. पर्सन हु डिजाइन द लुक ऑफ द पेज, लुक ऑफ द साइट, हु ऐड इमेजेस, बैकग्राउंड कलर चेंज करता है, that person we call a designer. A person who write a program, who write a script, who use CGI common gateway interface बोलते हैं, वो सब यूज करके इंकॉर्ड करता है, इमेजेस ऐड करते हैं, प्रोग्रामिंग ऐड करता है. दैट पर्सन इज कॉल्ड, वी कॉल प्रोग्रामर. अगर वेब प्रोग्रामिंग करता है तो वी कॉल्ड एज अ वेब मास्टर. अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ द सर्वर whether it is running properly, the person who is responsible for establishing new content development area, a person who write a script for maintaining security, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को मेंटेन करता है, दैट पर्सन इज आल्सो कॉल्ड अ वेब मास्टर. ओके, इसके बहुत से एडवांटेजेस है. ओके, वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब के बहुत से एडवांटेजेस है. हाइपर टेक्स्ट है, आप क्लिक करो कोई भी फाइल ओपन करेगा. कंटेंट इज सिंपल टू क्रिएट एंड मेक अवेलेबल टू यूज. यू कैन ऐड मल्टीमीडिया इफेक्ट, जैसे इमेज ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन इमेजेस ऐड कर सकते हैं, मूवीज ऐड कर सकते हैं, आप साउंड ऐड कर सकते हैं. आप द स्टैंडर्ड्स आर ओपन, anybody can use anywhere, there is no need to purchase license, easy to use, just click करो, access करो. डाउनलोड फैसिलिटी, आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं. चीप इंफॉर्मेशन कैन बी पब्लिश एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट. जस्ट 2-3 हजार में आप पूरे वर्ल्ड में आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं और कभी भी अपडेट कर सकते हैं इसको. तो दिस आर वर्ल्ड वाइड वेब का इंफॉर्मेशन. चलो, आई स्टार्ट HTML नाउ. चलो, दिस आई रिकॉर्ड. Okay, I'll just see I can record क्या है, ये टॉपिक I'll record. Okay. Girls, today I'll start HTML. You can able to see my screen? Yes, sir. Yes. HTML stands for Hypertext Markup Language. Okay, HTML is an encoding schema used for creating and editing web page. Have you heard somewhere about schema? कोई सॉफ्टवेयर में सुना है आपने schema word? What is schema? Oracle में सुना होगा, SQL Plus में सुना होगा आप लोगों ने. Okay, schema means a structure. Oracle में we need to follow a structure. Same way HTML में भी there is a structure. We need to follow a structure. Therefore, it is called as encoding scheme used for creating and editing pages. आपका एक रूल है, एक स्ट्रक्चर है, उस पे ही आपको जो भी करना है करना पड़ेगा. You cannot do anything outside of that. Okay, same HTML भी एक schema है. It is an improvement over HTML. पहले जमाने में they used HTML language, which is called Standardized Generalized Markup Language. HTML language. HTML के पहला था HTML language. Okay, ये लैंग्वेज में क्या था? नॉर्मल टेक्स्ट आप एक दूसरे के यहां से दूसरी जगह भेज सकते थे. मोस्टली दिस इज यूज्ड बाय अमेरिकन डिफेंस एकेडमी. ओके, उस समय अमेरिका की मिलिट्री यूज करती थी ड्यूरिंग वॉर टाइम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजने के लिए. दे जस्ट सेंड अ प्लेन इंफॉर्मेशन. कुछ इसमें कलर नहीं होता था, बोल्ड, इटालिक्स, अंडरलाइन नहीं होता था, इमेजेस में ऐड कर सकते थे, नॉर्मल इंफॉर्मेशन भेजते थे. देन दे मेक अवेलेबल टू द पीपल. आपके पेरेंट्स को आप पूछ सकते हैं कि उस जमाने में कुछ ऐसा होता था कि आप इंफॉर्मेशन भेज सकते थे. अभी सपोज बॉम्बे में कोई बीमार है, तमिलनाडु में मुझे कुछ भेजना है. उस जमाने में आपको डैडी को पूछो, आप पेरेंट्स को पूछो. उस टाइम पे हमें जाके पोस्ट ऑफिस पे हमको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था और पोस्ट ऑफिस में जाके हमको एक टेलीग्राम देना पड़ता था कि टेलीग्राम में 2-3 लाइन लिखना पड़ता था. ऐसा पर्सन इज सीरियस, कम इमीडिएटली, ऐसा इतना ही लिखते थे. और उसको इंफॉर्मेशन 1 दिन या 2 दिन के बाद जाता था उसके पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट मास्टर लेके जाके उनके घर पे देता था और उसका चार्जेस होता था जो भी 30-40 रुपया. ऐसे मिलिट्री के बाद पब्लिक फिर ये ऐसे यूज करने लगी.
ओके, इसको टेलीग्राम बोलते हैं, उस टाइम पे यूज करते थे लोग। ओके, नाउ अब देखो आज कितना ये हो गया, 2 सेकंड में इंफॉर्मेशन चला जाता है। ओके, उस टाइम पे आपको कुछ भी भेजना पड़ता तो आपको टेलीफोन पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था, एड्रेस देना पड़ता था और इंफॉर्मेशन टाइप करना पड़ता, 2-3 लाइन जो भी लिखती हैं आप। अब जितना लिखेंगे, जितना कैरेक्टर लिखेंगे, जितना वर्ड लिखेंगे, उतना आपको चार्ज होता था और वो इंफॉर्मेशन 1 या 2 दिन में जाता था, डिपेंड्स ऑन कौन से एरिया में रहता है आदमी। अगर नॉर्मल शहर में रहता है तो वो 1 दिन 24 घंटे के बाद जाता था, अगर अंदर अंदर गांव में जाना है तो 2 दिन भी लग जाते थे। ओके, अपने पेरेंट्स को पूछो ये सब, वो बताएंगे आपको। मेरे टाइम पे था ये सब, मैं खुद मैं जब स्कूल में था, जब मैं कॉलेज में था, तो मैं ये सब देखता था, मैं सब। ओके, so that type of language is called HTML. Now they improved this and they converted into HTML. Okay, HTML is a general purpose tool for developing a document of any kind. It is originated in 1960. It was developed to overcome the problem while moving document across hardware platform and operating system. Plain text है तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे चला जाता था, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला जाता था, कोई भी मशीन में चला जाता था। HTML is an international standard used for formal definition of system and platform independent text. Okay, platform independent text के लिए ये यूज कर सकते थे। HTML is used for defining and creating descriptive markup language. Hence it is known as meta language भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट है, इसको मेटा लैंग्वेज भी बोलते थे। A descriptive markup language use code or tag to describe the document elements like paragraph, title, so on. एक नॉर्मल बेसिक कोड होते थे, पैराग्राफ, टैग, ऐसे 2-3 कोड होते हैं, ऐसे होता था। HTML is a language of tags. इसमें आपको भरपूर टैग्स मिलेंगे। आजकल कलर चेंज करने के लिए टैग, फॉन्ट चेंज करने के लिए टैग, साइज चेंज करने के लिए टैग, इमेज ऐड करने के लिए टैग, हर एक टैग से बना है। HTML is a language of tag. उस टाइम पे 2-3 टैग ही थे, पैराग्राफ टैग, टाइटल टैग, ऐसे टैग यूज करते थे। Much clear and flexible tag make document development easier. ओके, और ज्यादा टैग ऐड किया उन्होंने तो जाके HTML बना। फिर बाद में उन्होंने बहुत कुछ अच्छा करके इसको HTML बनाया। HTML was designed by Tim Berners-Lee. कहां पे बनाया इन्होंने? Central European Research Nuclear in 1990 with the aim of sharing information across the world. उसका एम था। And today he is the director of World Wide Web Consortium. एक एसोसिएशन है वर्ल्ड वाइड वेब जो डिसाइड करता है रूल्स एंड रेगुलेशन कि वेबसाइट में कैसे होना चाहिए, आगे कैसे बनना चाहिए वेबसाइट, जो भी इसके रिवॉल्यूशन है, नया नया टेक्निक्स ऐड करते जाते हैं लोग। दैट टेक्निक, दैट इंस्टीट्यूट कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, उसका आज टिम बर्नर-ली इज अ डायरेक्टर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कुछ भी रूल बनाते हैं तो पहले पूरा देयर आर मेनी मेंबर्स, जैसे मेंबर को आप कौन है मेंबर इसके? एप्पल, IBM, ओके, अडोब, ऐसे बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स कंपनीज। यूनिकोड जो बारकोड करते हैं, मतलब वो कंपनी जिन्होंने डिसाइड किया, जिन्होंने बनाया, ऑल दिस कंपनीज all are members. There are many universities are the members. American Defense इसके member है। Okay, ये सब जम के they are all members. They prepare a draft. They prepare suggestions. They decide. They have meetings. ये सब करके ड्राफ्ट बनाते हैं and then they send to टिम बर्नर-ली। और टिम बर्नर-ली का भी ग्रुप होता है, they decide, वो चेक करते हैं सब बराबर है तो ये सैंक्शन देते हैं। वो सैंक्शन बाद में रिकमेंडेशन बन जाता है, तो दैट रिकमेंडेशन वो सब बाद में सबको मिलता है। ओके, दिस इज द वे हाउ दिस कंपनी वर्क एंड टिम बर्नर-ली इज द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। उसके बिगर कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसे। ओके, दे हैव अ ग्रुप, उसका भी अप्रूवल, सब ग्रुप का अप्रूवल होता है। ओके, हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या है पहले बताता हूं। हाइपरटेक्स्ट इज अ ऑर्डिनरी टेक्स्ट दैट हैज बीन ड्रेस्ड विद एक्स्ट्रा फीचर। एक नॉर्मल टेक्स्ट है और उसके पास कुछ अलग फीचर है। कैसे फीचर है?
फॉर्मेटिंग इमेज, मल्टीमीडिया इफेक्ट हो सकता है, उसमें लिंक हो सकता है। ओके, लिंक, टेक्स्ट पे लिंक पे क्लिक करो, कुछ एक्ट करेगा टेक्स्ट, देयरफॉर वी कॉल इट एज एन हाइपरटेक्स्ट। मार्कअप, मार्कअप का मतलब क्या है? मार्कअप क्या मतलब क्या है? इट्स अ कमांड दैट टेल ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द ब्राउजर। अब जो भी लिखेंगे वो ब्राउजर पे मार्क करेगा, वो ब्राउजर पे डिस्प्ले करेगा, वो तो ब्राउजर पे मार्क करेगा वो, देयरफॉर वी कॉल इट एज अ मार्कअप लैंग्वेज। तो कमांड इज अ लैंग्वेज, टैग इज अ लैंग्वेज, टैग इज अ कमांड। अब टैग देके कमांड देंगे ब्राउजर को कि ये लिखो, तो मार्क करेगा, आपके ब्राउजर में दिखेगा। दैट इज नॉट एज मार्किंग। ओके, देयरफॉर वी कॉल इट एज अ मार्कअप, इट्स अ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे बाकी लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे बाकी लैंग्वेज के भी उसके ओन सिंटैक्स है, उनके रूल्स है, सेम वे HTML के भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। देयरफॉर वी कॉल इट एज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सर सॉरी सर टू इंटरप्ट, बट सर आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। फिर से देख हो रही है, अभी अभी हाँ अभी क्लियर है? अभी ठीक है, हाँ क्लियर है, बट बीच बीच में ब्रेक हो रही है। आप वो जो कमांड लाइन का बोल रहे थे ना, वो सेंटेंस नहीं सुनाई दी। ओके, ओके, कमांड लाइन, ओके, हाँ okay, I'll repeat all that. Okay, I'll repeat. Okay, I'll repeat. What is hypertext markup language? बोला मैंने. Hypertext means an ordinary text that has been brushed with extra features. Normal text है, normal text नहीं hypertext. ये text है जिसपे you can hyperlink डाल सकते हैं आप, कलर चेंज कर सकते हैं उसको इफेक्ट दे सकते हैं, क्लिक करने से दूसरा टेक्स्ट ओपन होगा, दूसरा इमेज होगा. Therefore we call it as an hypertext. टेक्स्ट से सुपर टेक्स्ट. मार्कअप का मतलब है ये ब्राउजर पे मार्क करेगा आपका, जो भी आप करेंगे ब्राउजर पे आना चाहिए. दैट इज नोन एज मार्किंग. मार्किंग कैसे करेंगे? आप कमांड देंगे ब्राउजर को. कमांड कैसे देंगे? आप टैग से देंगे. जो बाकी सॉफ्टवेयर में कमांड देते हैं, HTML में आपको टैग देना पड़ेगा. तो टैग देके ब्राउजर को बोलेंगे कि ये करो, तो ब्राउजर वो करेगा. दैट इज कॉल्ड मार्किंग. Therefore we call it as a markup. लैंग्वेज क्यों बोलते हैं हम लोग को? बाकी लैंग्वेज में भी देयर इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन. सेम वे HTML के भी देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन we need to follow. Therefore we call it as a language. Is that clear? That is a hypertext markup language. What is HTML file? HTML file is a text file that contain small markup tags. आपको HTML फाइल कैसे दिखेगा? टेक्स्ट भी दिखेगा, उसमें मार्कअप भी दिखेगा, टैग्स भी दिखेंगे. द टैग्स टेल द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले अ पेज. ओके, HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है. आप .html लिखो और .html लिखो. HTML भी लिख सकते हैं और HTML, बट अकॉर्डिंग टू मी आप .html लिखना चाहिए एक्सटेंशन, बिकॉज .html सपोर्ट विंडोज सर्वर एज वेल एज यूनिक्स सर्वर. अगर आप .html लिखेंगे, कभी कभी हो सकता है कि यूनिक्स सर्वर उसको सपोर्ट नहीं करेगा. इट इज बेटर टू राइट .html. ओके, और HTML कोडिंग कहां पे लिखेंगे आप? सिंपल एडिटर पे. आई विल टीच यू टू राइट HTML प्रोग्रामिंग इन नोटपैड. ओके, देयर आर डिफरेंट एडिटर. आई विल शो यू. वेब ड्रीमवीवर में लिख सकते हैं आप, इंटरडेप्थ में लिख सकते हैं आप, इंटरडीव होता है, वर्डपैड में लिखते हैं बहुत जन. ओके, देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर. तो बेस्ट एडिटर इज नोटपैड. वर्ल्ड वाइड में पीपल यूज अंडर नोटपैड. इफ आई गेट टाइम आई टीच यू ड्रीमवीवर में कैसे लिखते हैं. बहुत सिंपल है, आपको कोडिंग याद ही करने की जरूरत नहीं है. जस्ट ग्राफिकल व्यू से करेंगे आप तो फटाफट आपका कोडिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा. जस्ट आपको क्लिक 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 करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ड्रीमवीवर कितना अच्छा है. आपको ड्रीमवीवर में कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं. अब जस्ट क्लिक क्लिक, जैसे मेन्यू यूज करते हैं, ऐसा क्लिक क्लिक करके करेंगे, ऑटोमेटिकली वो कोडिंग लिखेगा. आई विल शो यू दैट आल्सो. ओके, चलो. HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बोला. HTML इज अ एनकोडिंग स्कीम. उसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे ओरेकल का भी स्ट्रक्चर होता है. अब एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, रूल्स लिखेंगे, उसमें वॉरकेयर होना चाहिए, कमांड देंगे. उसी तरह HTML का भी देयर इज अ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में क्या है? देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HTML.
देखो ये है HTML का स्ट्रक्चर है जिसपे हेड जो HTML टैग है, टैग किसको बोलते हैं, जहाँ पे स्टार्ट होगा और एंड होगा। ओके, दिस इज टैग। HTML टैग है, हेड टैग होता है, सेकेंड टैग, फिर टाइटल टैग देना चाहिए आपको, हर एक टैग को क्लोज भी करना चाहिए फॉरवर्ड स्लैश डाल के, इंपॉर्टेंट टैग बॉडी टैग, फिर बाद में जो भी टैग है इट हैज टू बी नेस्टेड, मतलब जो पहला जो लास्ट में ना ओपन हो पहला बंद होगा, ये टेक्निक फॉलो करेगा वो, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफेक्ट। तो आपके टैग में भी नेस्टेड इफेक्ट होना चाहिए कि जो लास्ट में बंद हो पहला क्लोज होगा। तो देखो तो बॉडी टैग बंद किया मैंने, उसी तरह एंड पे HTML टैग भी बंद करना पड़ेगा। जो भी टैग ओपन करते हैं वी शुड क्लोज। ओके, देयर आर फ्यू टैग which we do not need to close। जैसे कोई टैग है आप क्लोज नहीं कर सकते हैं। देखो HTML का the rules are very loose। I'll say loose क्योंकि आप गलती करेंगे तो भी आगे जाएगा। But in the case of C language, the rules are very tough। आप थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो आगे नहीं जाएगा, आपको एरर देगा वो, और जब तक उसको करेक्ट नहीं करेंगे आप लोग तब तक वो आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा। HTML में ऐसा नहीं है, मिस्टेक होगा तो भी आपको आउटपुट दिखाएगा, भले वो कुछ जो चीजें आप चाहती हैं वो नहीं दिखाएगा मगर दिखाएगा आउटपुट। Therefore, the survey says 99% of the website in the world are incorrect। इसका मतलब है क्योंकि रेगुलेशन रूल्स बहुत लूज है, इसके लिए पब्लिक मिस्टेक बिंदास करती है और पूरे वेबसाइट में मिस्टेक मिलेगा आपको। सर्वे सेज दैट। इसके लिए नाउ दे आर कमिंग विद अ न्यू द इंप्रूवमेंट ऑफ HTML कॉल्ड XHTML, जिसमें रूल्स बहुत टफ होने वाले हैं। आपने ओपन किया तो बंद करना पड़ेगा आपको, अगर आपने एट्रीब्यूट यूज किया तो एट्रीब्यूट को क्लोज भी करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट को कोड देना पड़ेगा विथ मेनी कंडीशंस। Therefore, they are coming with a new new tag, new नहीं बोलूंगा मैं, improvement of HTML, जिसके this will improve the HTML standard, ऐसे बोलते हैं। Okay, मोस्टली आ गया है but most of the people are not using because many of the websites are not supporting, many of the web browsers are not supporting। इससे काम चालू है अभी भी। Okay, so let's go for पहला टैग देखते हैं, what is HTML tag। The first and the last tag of a HTML document is HTML tag। These are the tags that tell a web browser where your HTML in your document begin and end। आपका अब जैसे HTML देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आप मेरा HTML पेज स्टार्ट हो रहा है, जहां HTML बंद हो रहा है उसका मतलब आपको लगेगा कि ये एंड है। इसको दूसरा नाम भी है, रूट एलिमेंट भी बोलते हैं इसको। ओके, इसके अंदर बहुत से टैग आते हैं, you'll see that। Then the second tag is head tag। It's a very important tag which describe the content of document। अभी फिलहाल आपको नॉर्मल बताऊंगा कि बेसिक HTML टैग, एक टैग HTML हेड के अंदर भी बहुत से टैग आते हैं, जैसे टाइटल टैग। HTML हेड के अंदर बहुत से टैग आएंगे जो हम लोग आगे डील करेंगे। अभी फिलहाल आपको अभी नहीं बता पाऊंगा ज्यादा कि हेड के अंदर क्या क्या टैग होते हैं, जब आएगा मैं बताऊंगा कि HTML के हेड के अंदर बहुत से टैग आ सकते हैं। अभी फिलहाल एक टैग आएगा दैट इज कॉल्ड टाइटल टैग। बहुत से टैग जैसे मैंने बोला ना HTML में, स्क्रिप्ट टैग, स्टाइल्स के टैग, कमेंट के टैग्स, ये सब टैग उसके अंदर आएंगे। आपको लगेगा क्या है स्टाइल शीट, स्क्रिप्ट क्या है, ये आपको लगेगा पहली बार सुना आपने, लगेगा आगे जैसे जैसे आएगा मैं बताते जाऊंगा। अभी मैं हेड टैग के बारे में ज्यादा नहीं बताता हूं। हेड के अंदर एक टैग है टाइटल, आपको टाइटल, हर पेज का टाइटल देना पड़ेगा आपको। The most important element is the title element, which most browser display in the title bar at the top of the browser window। This document is actually the only tag required under traditional HTML specification and should occur as the first element in the head element। हेड एलिमेंट पे आपको टाइटल तो देना ही पड़ेगा। ओके,
इसमें बहुत बोलते हैं कि द टाइटल शुड बी वेरी कंसाइज, ऑथर शुड लिमिट टाइटल लेंथ टू रीजनेबल नंबर ऑफ कैरेक्टर. ओके, नेटस्केप एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट 20 to 30 कैरेक्टर टाइटल. टाइटल बड़ा भी नहीं होना चाहिए. जब मैंने एक वेब पेज पहले बनाया तो मेरा उसको टाइटल का नाम दिया मैं फर्स्ट पेज, माय फर्स्ट वेब पेज, इतना छोटा. ओके, वन वे टू लिमिट द लेंथ ऑफ द टाइटल इज टू रिमूव वर्ड सच एज ए एंड द. इससे आपको ज्यादा जगह मिलेगा. यू कैन राइट इन अ कंसाइज वे. अदर एलिमेंट है, बेस है, इस इंडेक्स, ये सब अदर एलिमेंट है. मैं कुछ बताऊंगा तो आपको समझेगा नहीं, मैं आगे जब जब आएगा ये मैं बताऊंगा. नेक्स्ट, बॉडी टैग. बॉडी टैग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैग इन HTML. आपको जो भी ब्राउजर पे डिस्प्ले करना है तो बॉडी टैग के अंदर लिखना पड़ेगा. आपको कलर चेंज करना है, इमेज इंसर्ट करना है, लिंक देना है, जो भी करना है आपको बॉडी टैग के अंदर ही करना पड़ेगा. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टैग. HTML के भी देयर आर लिमिटेशन. देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ टैग्स. जो है वही यूज करना पड़ेगा. आप बोलेंगे मैं कुछ नया बना सकता हूं क्या, नया टैग डाल सकता हूं? नहीं. आपको सेमेस्टर 6 में एक वेब प्रोग्रामिंग है कॉल XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. उस पर आप अपना खुद का टैग बना सकते हैं, मगर HTML आपका अलाउ नहीं करेगा. जो टैग HTML में है वो यूज कर सकते हैं आप. अगर आपने कुछ अजीब यूज किया टैग, कुछ अलग नाम का टैग बनाया तो HTML सोचेगा कि आपने टेक्स्ट लिखा है, वो आपको फॉर रिव्यू करेगा, आगे जाएगा. ओके, तो देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ टैग. इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड नंबर ऑफ टैग. आप बोलेंगे ये करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं कर सकते हैं आप. जो टैग है वही कर सकते हैं. बाकी आपको जो अगर कुछ नया करना है आपको दूसरे सॉफ्टवेयर का हेल्प लेना पड़ेगा. टैग नेम डू नॉट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द कंटेंट. इसमें ऐसे ऐसे टैग है जो आपको समझेगा नहीं क्या करता है ये. ओके, टैग बताएगा नहीं कि आपको ये क्या करता है. कुछ टैग है दिखेगा आपको. HR, क्या लगता है आपको HR से? ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा. BR आपका लाइन ब्रेक करेगा. ऐसे अलग अलग टैग है और जो आपसे नाम से नहीं मालूम पड़ेगा मगर अपना काम करेगा. स्पेसिफिकेशन इज टू लूज फॉर कंप्यूटर टू efficiently read and interpret document. Okay, the specification is too loose. मतलब आप कुछ मिस्टेक करेंगे तो जाके जाएगा. इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इतने टाइट नहीं है. You need to follow HTML structure. HTML is dedicated to structure. जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना पड़ेगा. एप्लीकेशन कैन नॉट कंज्यूम HTML इजीली. आप बोलेंगे इसको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर के साथ जमा सकते हैं, जो इतना आसान नहीं है. आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उसको. HTML does not support mathematical operation. जैसे बाकी सॉफ्टवेयर आपको ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी कर सकते हैं. ये HTML आपको सपोर्ट नहीं करेगा. You cannot add, subtract, multiply, divide. You cannot write formulas. Being used for the thing which is not designed. ऐसे ऐसे कामों के लिए भी यूज होता है आजकल जो तो इसको डिजाइन ही नहीं कर सकता ऐसे कामों के लिए. HTML डिजाइन है फिक्स सेट ऑफ एलिमेंट. HTML के पास फिक्स टैग्स हैं, वो यूज कर सकते हैं आप. Most HTML on the web is incorrect. ये पहले ही बोला मैंने. Cannot accommodate special needs. आप कुछ अलग करना चाहते तो नहीं होगा, जो है उसके अंदर वही कर सकते हैं. ब्राउजर्स आर फॉरगिविंग. आपने अगर कुछ मिस्टेक किया तो भी आगे जाएगा वो. कैनॉट कस्टमाइज लेआउट फ्रॉम द क्लाइंट साइड. क्लाइंट को कुछ और अलग करना है, कुछ ऐड करना है तो आपको दूसरा सॉफ्टवेयर का मदद लेना पड़ेगा. डस नॉट रिकॉग्नाइज स्पेस, टैब एंड मार्जिन. आप बोलेंगे मुझे 5-6 स्पेस देना है, 5-6 टैब देना है, मार्जिन देना है, नहीं दे सकते आप. वर्ड फाइल में जाओ, दे दिया, टैब टैब कर दिया, हो गया. नहीं दे सकते आप. यहाँ पे आपको टैग देना पड़ेगा. हर एक टैग है. आपको स्पेस देना है तो टैग है, आपको टैब देना है तो भी टैग है, आपको मार्जिन देना है तो टैब यूज करना पड़ेगा, उसके टैग्स यूज करना पड़ेगा, उसको कमांड यूज करना पड़ेगा. डस नॉट सपोर्ट ऑल फॉन्ट स्टाइल्स. फॉन्ट स्टाइल बहुत है, एरियल ब्लैक, कोरियर, ऐसे अलग अलग फॉन्ट स्टाइल है. आपका ब्राउजर आप सब फॉन्ट और स्टाइल को सपोर्ट नहीं करेगा. कैसे मालूम पड़ेगा कि सपोर्ट नहीं करता है? आपको डाल के देखना पड़ेगा. सपोज मैंने डाला टाइम्स न्यू रोमन, आपके ब्राउजर में उसका इफेक्ट दिखता है.
सपोर्ट कर रहा है, नहीं इफेक्ट दिखता है मतलब नहीं सपोर्ट कर रहा है, आपको चेंज करना पड़ेगा फॉन्ट। ट्रांसलेट इजीली फ्रॉम अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट फैसिलिटी इज अलाउड। डस नॉट रिकॉग्नाइज लाइन ब्रेक, पैराग्राफ ब्रेक, ये सब आप नहीं दे सकती हैं। दे सकते हैं, आपको कमांड देना पड़ेगा अपने नोट। अब वर्ड में जाते हैं, एंटर कर दिया, एक लाइन ब्रेक हो गया, पैराग्राफ दे दिया, नहीं, ये वर्ड में कर सकते हैं आप, HTML में नहीं कर सकते आप, आपको कमांड देना हर एक के लिए, टैग देना पड़ेगा आपके हर के लिए। ओके, तो दिस आर द लिमिटेशन ऑफ HTML। तो आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर पे आई विल शो यू हाउ टू डू दिस डॉक्यूमेंट ऑन HTML। इसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, मैंने बहुत से ई कंटेंट बना के रखे हैं, which I will share with you all people। ओके, तो कोई है जो अटेंडेंस कॉपी कर सकता है?